سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کی اہلیہ زندہ ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق منصورہ باقر زادہ حملے میں شہید نہیں ہوئیں۔ اس سے پہلے کئی سرکاری اداروں نے علی خامنائی کی اہلیہ کی موت کی تصدیق کی تھی۔ آبنائے ہرمز بند رہے گا، شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے، ایرانی سپریم لیڈر کا اعلان۔ مجتبیٰ خامنائی کا ایرانی رہبر اعلیٰ بننے کے بعد پہلا پیغام جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر نے آڈیو پیغام میں کہا کہ علاقائی ممالک امریکی فوجی اڈے بند کر دیں۔ ہمارا ہدف خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے ہیں۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا ہماری مجبوری ہے۔ ایران میں خانہ جنگی اور تقسیم کی سازشیں ناکام بنا دیں۔ ایران کی جغرافیائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہمارے طاقتور حملوں نے دشمن کا وہم پاش کر دیا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ بولے کہ ایرانی افواج نے اپنی طاقت سے دشمن کا راستہ روکا۔ دشمن جہاں جہاں کمزور ہے وہاں کارروائی ہوگی۔ ایران اب دشمن کی کمزوریوں کو نشانہ بنا کر جنگ کا پانسا پلٹے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا میناب کے اسکول میں بچیوں کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ مزید کہا کہ دشمن کے جرائم کا بدلہ لینے میں ہچکچائیں گے نہیں۔ معصوم بچوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان۔ کمانڈر پاسداران انقلاب نیوی کا کہنا ہے کہ سپریم کمانڈر مجتبیٰ خامنائی کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ دشمن پر اب تک کے سخت ترین وار کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس دشمن کو سمندر برد کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ مشیر ایرانی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی بجلی 1 گھنٹے میں بند کرنے کا دعویٰ کیا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پورا خطہ آدھے گھنٹے میں اندھیرے میں ڈوب جائے گا، اور یہ اندھیرا خطے میں امریکی فوجی اہلکاروں کا شکار کرنے کے لیے بہترین موقع ہوگا۔ امریکی صدر کا جنگ ختم کرنے کے بیان سے یو ٹرن۔ جنگ کے خاتمے کو مقاصد کے حصول سے مشروط کر دیا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران جنگ جیتنے کا دعویٰ۔ کینٹکی میں اپنے حامیوں سے خطاب میں ٹرمپ بولے کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ تو پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی، لیکن مقاصد کی تکمیل تک ایران سے نہیں جائیں گے۔ مزید کہا کہ تیل کی قیمت بہت جلد نیچے آئے گی۔ قیمتیں اتنی نیچے آئیں گی جس کا کسی کو گمان نہ ہوگا۔ ایران کی نیوی، فضائیہ اور کنٹرول سسٹمز تباہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایران کی تمام کشتیاں سمندر برد کر دی ہیں۔ ایران کے پاس اب میزائل بھی زیادہ نہیں بچے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دوں گا۔ ہمارا اصل ہدف ایران کو مشرق وسطیٰ کی تباہی سے روکنا ہے۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی کے لیے 3 اہم شرائط رکھ دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ موجودہ جنگ صرف 3 شرائط پر ختم ہو سکتی ہے۔ پہلا، ایران کے غیر متنازع حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا، جنگ کے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ تیسرا، عالمی طاقتیں ضمانت دیں مستقبل میں ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت نہیں ہوگی۔ یہی واحد راستہ ہے جو خطے میں دیر پا امن لائے گا۔ اس جنگ کو صہیونی حکومت اور امریکہ نے بھڑکایا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ ایرانی ساحلوں پر حملہ ہوا تو ایران ہر قسم کا ضبط و تحمل چھوڑ دے گا۔ خلیج فارس حملہ آوروں کے خون سے بھر سکتی ہے۔ اگر امریکی فوجیوں کا خون بہتا ہے تو اس کی ذاتی ذمہ داری ٹرمپ پر عائد ہوگی۔ تیل تنصیبات پر حملوں سے مشرق وسطیٰ آگ میں جھلس گیا۔ عمان کے سلالہ پورٹ پر حملے سے تیل کے ذخیرے میں خوفناک آتش زدگی۔ ڈرون حملے سے فیول سٹوریج ٹینکس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کی عمان کی تیل تنصیبات پر حملے کی تردید۔ عراقی شہر بصرہ میں بندرگاہ کے قریب 2 امریکی آئل ٹینکرز کو تباہ کر دیا گیا۔ ایک آئل ٹینکر پر سوار 1 بھارتی شہری ہلاک ہو گیا۔ 15 بھارتی ملاحوں کو بچا کر بصرہ منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد عراق میں تیل کی تمام بندرگاہیں بند۔ بحرین میں ایرانی حملے کے بعد بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قریب تیل اور ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ ایران کے قطر اور کویت پر بھی بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ ڈرون سے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی میزائلوں کی بارش۔ سعودی عرب نے تمام میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔
दुबई में क्रीक हार्बर में हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। उधर बहेरा अहमर में तैनात अमरीकी जंगी जहाज पर आग लग गई। अमरीकी बहरिया ने जंगी जहाज जेरल्ड फोर्ड पर आग लगने की तस्दीक कर दी। ईरान का मिसाइल की 42वीं लहर से इसराइल पर हमला, जदीद खुरम शहर, कदर और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल को 10 भारी मिसाइलों से निशाना बनाया है। पहली बार फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निजाम को चकमा देकर अहदाफ को तबाह किया। ईरानी हमले से इसराइल में तबाही के मनाजिर भी सामने आ गए। एक ईरानी मिसाइल बैत शमीसा में बम शेल्टर पर भी गिरा था। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर सबसे बड़े हमले में 100 रॉकेट दाग दिए। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। इसराइल का एटमी हथियार तैयार करने वाले ईरानी कंपाउंड को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि तेहरान में एटमी हथियार बनाने वाले कंपाउंड को निशाना बनाया। ईरान में फिजाई हमलों से शहादतों की तादाद 1348 तक पहुंच गई। इसराइली और अमरीकी हमलों से 17,000 ईरानी जख्मी हो चुके हैं। जंग से अब तक 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके हैं। खित्ते में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल जैसी कंपनियां भी गैर महफूज। ईरान का अमरीकी टेक कंपनीज और बैंक्स को निशाना बनाने की धमकी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अब इजराइल और खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी टेक कंपनीज और मालियाती इदारों को निशाना बनाया जाएगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल जैसी बड़ी अमरीकी टेक कंपनीज के दफातर और मालियाती इदारे मुमकिना अहदाफ हो सकते हैं। आम शहरी ऐसे बैंक्स और मालियाती इदारों से दूर रहें जो अमरीका या इजराइल से वाबस्ता हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के बयान के मुताबिक हालिया हमलों में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया गया था। उधर ईरानी हमलों के बाद खलीजी ममालिक में बैन अवी बैंक्स का काम मुतासिर। कतर और दुबई समेत कई मकामात पर आलमी कंपनीज को बंद कर दिया गया। ईरानी बच्चियों के स्कूल पर हमला क्यों किया, जिम्मेदार कौन? तमाम अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने वज़ीर दिफा पीट हेग्जिट से जवाब मांग लिया। अमरीकी सेनेटर्स ने अपने खत में लिखा कि 110 बच्चों समेत 168 अफराद की हलाकत के जिम्मेदार कौन हैं, जवाब दिया जाए। फौजी तहकीकात के मुताबिक स्कूल पर हमला अमरीकी फौज ने किया। खत में यह भी पूछा गया कि क्या लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाने की वजह गलत अंदाजा थी और क्या जंगी जुराइम से बचाव के असूलों पर अमल किया गया। वजारत दिफा का कहना है कि ईरान में मिनाब स्कूल हमले की तहकीकात जारी हैं। सेनेट को हमले से मुतालिक बराह रास्त जवाब देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज की तहकीकात से ये बात सामने आई है कि इस हमले की जिम्मेदार अमरीकी फोर्सेज ही हैं। लेबनान में इसराइली हमलों में 15 तिब्बी कारकुन जाँ बहक, 45 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एम्बुलेंस का अमला और पैरामेडिक्स शामिल। पैरावमा हंदो मार्च से अब तक लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 634 हो गई। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले, कई इसराइली फौजी जख्मी हो चुके। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन ने 9/11 जैसे एक और वाक़े का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं सिर्फ फ़ज़ाई हमलों से ईरान को नहीं गिराया जा सकता, ईरान पर ज़मीनी हमले के लिए 9/11 जैसा एक और हमला करवाया जा सकता है। जंग पसंदों को अमरीकी फ़ौज उतारनी होगी। ज़मीनी जंग का जवाब पैदा करने के लिए अमरीका में दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया जा सकता है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में तेहरान के मज़ाफ़ात में टारगेट्स को निशाना बनाया गया। उधर जनूबी कोरिया से अमरीकी थॉट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मुंतकली शुरू। स्विंजो बेस से तमाम 6 थॉट लॉन्चर्स मशरक़ वस्ता भेजे जाने की इत्तलात। मिसाइल लॉन्चर्स की मुंतकली की फुटेज भी सामने आ गई।
मशरक़ वस्ता में कशीदगी और इराक में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 9% बढ़ गई। बरतानवी ब्रेंट की कीमत $6 बढ़कर $100 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल भी 9% इजाफे से $95 फी बैरल पर आ गया। उधर थाईलैंड ने तिजारती जहाज पर हमले के बाद ईरान से बाकायदा माफ़ी का मुतालबा कर दिया। थाई वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया और हमले पर वजाहत मांगी। खलीजी ममालिक में तेल की तनसीबात पर हमले। इराकी शहर बसरा में बंदरगाह के करीब 2 अमरीकी ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया। ऑयल टैंकर्स पर सवार एक गैर मुल्की शहरी हलाक, 38 अफराद को बहिफाजत निकाल कर बसरा मुंतकिल कर दिया गया। इराक में तेल की तमाम बंदरगाहें बंद कर दी गईं। बहरीन के फ्यूल स्टोरेज तनसीब में भी शदीद आग भड़क उठी। वजारत दाखिला ने आग लगने की वीडियो जारी कर दी। ओमान की बंदरगाह पर भी ड्रोन हमला, फ्यूल स्टोरेज टैंकों में आग भड़क उठी। ईरान ने ओमान की तेल तनसीबात पर हमले की तरदीद कर दी। उधर ईरान ने कतर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल और मुतअद्दिद ड्रोन्स दाग दिए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 6 बैलिस्टिक, 7 क्रूज मिसाइल और 39 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर भी मिसाइलों की बारिश। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। दुबई में फ्रैग हार्बर में हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। कुवैत में दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान का भारतीय टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने से इनकार। भारतीय ज़राए ने दावा किया था कि ईरान भारतीय ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ पर रास्ता देने के लिए तैयार है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने भारतीय ऑयल टैंकर्स को रास्ता देने की तरदीद कर दी। ईरान इसराइल जंग में भारत की दोगली पॉलिसी पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में भारत जाने वाले थाईलैंड के तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और इराक में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 9% बढ़ गईं। बरतानवी ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत में 9% इजाफा रिकॉर्ड। कीमत $100.50 हो गई। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 8.57% इजाफे से $94.73 फ़ी बैरल हो गई। दूसरी जानिब आलमी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केट के S&P इंडेक्स में 14 पॉइंट्स की कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स 35 पॉइंट्स गिर गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी रही। एशियाई स्टॉक मार्केट में 1% से ज़्यादा कमी हुई। उधर अमरीकी सदर का अमरीकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने का हुक्म। वज़ीर तवानाई क्रिस्टोफर राइट के मुताबिक रिलीज़ आइंदा हफ्ते से शुरू होगी, जो तकरीबन 120 दिन में मुकम्मल हो जाएगी।